بسا اوقات انسان اپنی زندگی میں کچھ داستانیں سنتا ہے، کچھ سٹوری سنتا ہے کہ کیسے کسی سفر کا آغاز ہوا، کیسے کوئی ایک بیج لگا، کیسے وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا گیا، کیسے وہ تناور درخت بن گیا، کیسے وہ پہلے دوسروں کو دیکھ کے انسپریشن لیتا تھا اور پھر کیسے اللہ تعالیٰ نے خود اس کا ایک سلسلہ ذرا بہتر بنا دیا، مناسب بنا دیا۔ شان رمضان کے میری زندگی میں آنے سے پہلے یہ سب کچھ میرے لیے بھی ایک داستان تھا۔ کہہ لیجئے کہ آج ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں داستان شان رمضان۔ یہ چونکہ ہم نے آج اس وقت اگر ممکن ہے کہ آج اذان مغرب کے بعد چاند کی رویت ہو گئی تو شان رمضان 2023 کا اختتام ہو جائے گا، اور یوں شان رمضان کا ایک ڈیکیڈ مکمل ہو جائے گا۔ یعنی کہ ٹیکنیکلی تو ہم نے 10 سال پہلے مکمل کر لیے تھے، لیکن ہم چاہتے تھے کہ 11واں سال جب اپنی تکمیل کو پہنچے تو پھر ہم کہیں کہ ہاں 10 سال کی تکمیل کے بعد اب ہم 11واں سال میں مکمل طور پہ ختم کر چکے۔ تو یہ 2013 کا یہ معاملہ ہے کہ جب میں کرنٹ افیئرز اور اس طرح کی چیزوں سے وابستہ تھا کہ جب مجھے کہا کہ رمضان نشریات کے حوالے سے آپ کوئی سلسلہ یعنی ہم آپ کو کنسیڈر کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے میں اور جنید بھائی ایک دو نشریات کر چکے تھے، جس کے بعد یہ خیال آیا مینجمنٹ کے ذہن میں کہ وسیم بادامی اور جنید جمشید کوئی نشریات کریں رمضان کی۔ تو ابتداً یہ آئیڈیا مجھے کوئی کچھ سمجھ اس اعتبار سے نہیں آیا کہ یعنی میں نے کہا کہ اب میں کرنٹ افیئرز اور یہ سب یہ معاملہ الگ ہے اور یہ معاملہ الگ ہے۔ بہرحال قصہ مختصر یہ، جس طرح ہم داستان میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وقت ہمیں داستان کو تیزی سے آگے بڑھانا ہے، تو یہاں بھی قصہ مختصر یہ کہ میں نے اپنے طور پر یہ سوچ کے کہ چلو ٹرائی کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، دیکھ لیتے ہیں، کوشش کر کے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر۔ معاملہ نہیں بھی چلا تو ٹھیک ہے، جو چیزیں پہلے سے کر رہے ہیں اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ 2013 شان رمضان کا ہم نے یہ سوچ کر آغاز کیا۔ اگلا منظر جو آپ دیکھیں گے وہ شان رمضان، جس کے آج 11 سال اذان مغرب کے بعد چاند کی صورت میں 11 سال مکمل ہو جائیں گے، ایک دہائی مکمل ہو چکی ہے، ایک ڈیکیڈ کا سفر ہو چکا ہے، الحمدللہ جنریشنز ساتھ بڑھی ہوئی ہیں، ہم خود ساتھ ساتھ بڑھے ہوئے ہیں۔ جو اب اگلا منظر دیکھیں گے یہ شان رمضان 2013 کا اس سیٹ کا پہلا منظر ہے۔ شہر رمضان بس گیا ہے، ماہ رمضان آ گیا ہے، اور یہی ہے شان رمضان۔ ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک کے اس پلیٹ فارم سے میں وسیم بادامی آپ کو ماہ رمضان المبارک کی آمد کی، ماہ رمضان المبارک اسی خشوع و خضوع اور بھرپور انداز میں منانے کی یقین دہانی کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اس سفر میں جب مجھے یہ بتایا گیا کہ آپ نے جنید جمشید صاحب کے ساتھ یہ کام کرنا ہے، تو مجھے یاد ہے میں نے پہلی بات یہ کہی تھی سب سے کہ ایک تو یہ کہ شان رمضان پتہ نہیں میں کر سکتا ہوں یا نہیں، یہ بڑا یہ کہاں کرنٹ افیئرس کہاں یہ، دوسرا یہ کہ جنید جمشید صاحب کے ساتھ تو میں بالکل بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ ایک ظاہر سنگر رہے، پھر اس کے بعد اب وہ ایک مبلغ ہیں، تو وہ کام میں کہ تو کوئی ربط ہی نہیں بنے گا۔ مجھے یاد ہے مجھے جی صاحب نے مجھے جملہ کہا تھا کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے صرف لنکنگ دینی ہے، آپ کا کام ہے لنکنگ دینے کا، اور باقی جو ہے وہ جنید بھائی وہ چیزیں دیکھیں گے اور آپ نے اس کے لنکس وغیرہ دینا ہے۔ تو بہرحال میں نے اگین یہ سوچا کہ چلو ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جوڑی پتہ نہیں چلے نہ چلے کیا ہے، نہ بھی چلے تو کیا نقصان ہے۔ اگلا جو آپ منظر دیکھیں گے شان رمضان پہلا 2013 جو کہ میرا اور جنید بھائی کا پہلا شان رمضان تھا، اس میں ہم نے پہلی مرتبہ جنید جمشید صاحب کو، جہاں سے سفر میرا اور جنید بھائی کا آغاز ہوا، ہم نے ان الفاظ میں جنید صاحب کو اسی سیٹ پر آج سے 10 سال 11 سال پہلے انوائٹ کیا تھا۔ ہم نے میں اس ٹرانسمیشن کی، اس شہر رمضان کی رونقوں میں مزید اضافہ کرنے کے لیے یہاں انتہائی عزت و احترام کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، جس طرح میں نے کہا میرا تو ان سے ایک خاصا ذاتی تعلق بھی ہے، میرے بڑے بھائی بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، میرے عزیز بھی ہیں، کئی نوجوانوں کے رول ماڈل بھی ہیں، زبردست نعت خوان بھی ہیں، ثنا خوان بھی ہیں، بہترین مقرر بھی ہیں، اور انتہائی خوبصورت شائستہ انداز میں دعوت اسلام بھی دیتے ہیں۔ تشریف لا رہے ہیں جناب جنید جمشید صاحب۔ جنید بھائی آئیے۔ یہ جنید جمشید صاحب کا کی پہلی آمد تھی شان رمضان کے سیٹ پر، اور ان کا جو انیشل کومنٹ تھا، پہلا کومنٹ شان رمضان پر
जुनैद जमशेद साहब का वो कुछ इस तरह का था, वो कुछ ये था। तो जब ARY ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी तो मैं बहुत खुश हुआ। फिर मुझे ये पता चला कि आप मेरे को होस्ट हैं, मैं आपके प्रोग्राम्स देखता हूँ। तो आपकी सारी एक्साइटमेंट खत्म तो नहीं हो गई ये सुन के? बढ़ गई, क्योंकि मैं आपके प्रोग्राम्स देखता हूँ और मैं माशाल्लाह देखता हूँ आप you're माशाल्लाह अ वेरी बोल्ड होस्ट। आप एक बोल्ड होस्ट हैं और आप मैं समझता हूँ कि आप पूरे सच और इखलास से आप अपना प्रोग्राम करते हैं। मतलब मेरा कोई कमाल नहीं, मुझे पैसे ही इस काम के मिलते हैं। नहीं, लेकिन आप इसको अच्छा करते हैं तो मेरे लिए एक और बड़ा ज़बरदस्त एक अपॉर्चुनिटी हो गई। मैं इंशाल्लाह इस 30 डेज़ के अंदर मैं आपसे सीखूंगा बहुत कुछ। अरे ये जुनैद जमशेद साहब के इनिशियल कमेंट से शान रमज़ान के बारे में। फिर इस सफ़र का आगाज़ हुआ। मुझे याद है वो लंबी लंबी हमारी मीटिंग्स होती थी कि क्या करना है, किस तरह करना है। हमारे चारों नात खां हज़रात हमारे साथ, उस वक्त 3 नात खां हज़रात थे, ज़ोहेब अशरफी साहब ने बाद में ज्वाइन किया। ये नात खानों का सेगमेंट, यानी हम लिटरली एक यानी कि आपको पता नहीं शायद अजीब लगे ये बात या क्या, हम ये भी देखते थे, मैं ज़ाती तौर पे ये देखता था कि अगर 3 नात खां हज़रात ने ये 1 2 3 नातें पढ़ी हैं तो किस नात पर रद्द अमल कैसा रहा है, कैसा रिस्पॉन्स आया है, किस नात को हमें ज़्यादा तवातुर के साथ पढ़ना चाहिए, यानी इतनी ज़्यादा माइन्यूट डिटेल्स के साथ। तो नात खानी का सेगमेंट होता था, फिर हमारा किचन का सेगमेंट होता था, उलमाए कराम के साथ नशिस्त होती थी। ये सब 2013 से जारी है, जो कि आज तक जारी है। उस नशिस्त को ज़ाहिर है जुनैद भाई ही ज़्यादा मेनली हैंडल करते थे। बैतबाजी, क्विज़, ये सारे सेगमेंट्स हमने सोचा था कि कुछ ना कुछ जो है वो इसमें ये इस तरह का टच भी होना चाहिए। और मैं खयानत करूंगा अगर मैं यहाँ पर एक जुमला ना कहूँ तो मैं खयानत करूंगा, और वो ये है कि ऑफ कोर्स मुझे कहने में कोई आर नहीं है। उनकी ज़िंदगी में भी मैंने ये बात 100 मरतबा कही है, ऑन एयर कही है, तो मुझे कहने में आर नहीं कि ज़ाहिर है सबकी बहरहाल जो इंस्पिरेशन थी, जो जहाँ से सारा सिलसिले का आगाज़ हुआ था, वो जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब थे, उन्होंने जिसका बुनियाद रखी और उन्होंने इस सिलसिले को चलाया था। तो ज़ाहिर है वो हर चीज़ अपनी अपनी जगह पर एक सिलसिला चल रहा था। नेकी का सेगमेंट होता था, फिर आगे जाके उसमें इकरार साहब आए, उन्होंने उसको एक अलग जहद दे दी, अलग अंदाज से चलाया। तो हम इस तरह एक एक सेगमेंट में हम बैठ के बात करते थे। हर सेगमेंट की अपनी एक दास्तान है जिसका अभी वक्त नहीं है, तो मैं ज़रा क्विकली आगे बढ़ता हूँ। फिर एक मामला था, हम सब इस पे बैठे कि कुछ अगर ऐसा सिलसिला हो सके कि हम बच्चों को, मुझे याद है कि इसमें बहुत सारे इनपुट्स थे इसमें हमारी सारी टीम का। फिर जे साहब कहते थे, मोहसिन भाई, डॉक्टर साहब, हम सब बैठते थे कि कुछ अगर ऐसा कर सकें। मुझे वो अल्फाज भी याद है कि भाई हमारे बच्चों को सुपरमैन के बारे में मालूम है, आयरन मैन के बारे में मालूम है, वो एक्वा, पता नहीं, मुझे तो नाम भी सही नहीं मालूम, पता नहीं वो एक्वा मैन या जो भी होता है उसके बारे में मालूम है, इन सारी मखलूक़ात के बारे में मालूम है। तो क्या ये मालूम है कि अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद को अल्लाह ने क्या मलका दिया था, अल्लाह के नबी हज़रत यूसुफ़ की दास्तान क्या है, अल्लाह के नबी हज़रत साले की दास्तान क्या है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दास्तान क्या है। तो हमने कोशिश की कि कसाइस के सेगमेंट की सूरत में, किस्सों के सेगमेंट की सूरत में कोई ऐसा सिलसिला कुछ शुरू करें कि बहुत ही आसान अंदाज में हम खुद भी ज़रा सीख सकें और ज़रा लोगों तक भी बात पहुँचा सकें। तो उस सारे बैकग्राउंड को ज़हन में रखते हुए हमने मुख्तलिफ अंबिया के कसाइस या कुरान करीम में मौजूद कसाइस का आगाज़ किया था। उसका आगाज़ हमने एक अलग अंदाज से किया था। रफ्ता रफ्ता उसमें हम कुछ ना कुछ कोशिश करते रहे कि उसमें बेहतरी लाई जाए। यहाँ तक कि जब पिछले साल, ये इसका क्रेडिट जाता है हमारे टीम को कि उन्होंने इस पूरे सेट की हैयत को ही बदल दिया, पाकिस्तान में बिल्कुल एक नया रंग दे दिया किसी भी नशरियात को। जब पूरा एक तकरीबन आप कह लीजिए 360, एक तो चैनल HD हो गया और पूरा 360 स्क्रीन्स के साथ पाकिस्तान की तारीख में, बल्कि मुझे लगता है कि शायद खित्ते की तारीख में, लेकिन यकीनन पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक इस तरह का सेट बन गया। तो हमने कोशिश की कि दीगर सेगमेंट्स की तरह किस्से के सेगमेंट में हम इस चीज़ को भी इस्तेमाल करें। तो मसलन हम आपको एक झलक दिखाते हैं कि हमने इस दफ़ा नूह अलैहिस्सलाम का जो किस्सा पढ़ा और दीगर अंबिया के, उसमें हमने कोशिश की कि बच्चों को ज़रा मज़ीद कोशिश करके जदीद दौर के तकाज़ों को इस्तेमाल करके ज़्यादा इंटरेस्टिंग अंदाज में, जिससे वो रिलेट कर सकें, ये दास्तानें बच्चों तक पहुँचाएं और ख़ुद भी सीख सकें। मिसाल के तौर पर ये हमने इस साल ये किस्सा किया था। खुलने लगे, मूसलाधार बारिश होने लगी, मूसलाधार बारिश, बादलों के हौलनाक अंदाज से कड़कने की आवाज। हो सकता है पहले पहले लोगों को लगा होगा कि मामूल की बारिश है, मगर कुछ वक्त में वो जो बादलों की आवाज, बारिश की आवाज, कुछ वक्त में उन्हें अंदाजा होना शुरू हुआ कि ये तो कुछ गैर मामूली मामला है। बात सोचिए, एक कश्ती खड़ी है, अल्लाह के नबी हैं, लोग खड़े हैं,
मूसलाधार बारिश की आवाज़ आ रही है। सो अब ये कोशिश ये जारी है कि हर साल कुछ ना कुछ वाक़यात को चुन के उनको जितना आसान तरीन, सहल तरीन और इंटरेस्टिंग अंदाज में हो सके आपकी खिदमत में हम पेश करें। बहरहाल ये तो मैं कसाइस के सेगमेंट से सीधा मैं इस साल पर आ गया, लेकिन शान रमज़ान के सफ़र पर ही चलते हैं। 2013 में इसका आगाज़ हुआ, 2013, 2014, अब ज़ाहिर हर साल की अपनी दास्तान, इतना वक्त नहीं है, 2015, 2016, ये सफ़र जारी था। हम सब बहुत खुश थे, अपने अपने अंदाज में हम बड़ा सेलिब्रेट भी कर रहे थे कि चलें चीज़ें आहिस्ता 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 बेहतर हो रही हैं। और आप यकीन जानिए, मतलब ये बस जहन में था कि कोशिश करनी है कि ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ सकें, हराना वराना ये सब नहीं है, तो मतलब बस अपनी रफ्तार को ज़रा तेज़ कर सकें, ये कोशिश थी। एक ख्वाब था, ये मुझे याद है कि ये अल्फाज कहे गए थे और वो ख्वाब पूरा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें मतलब किसी का कोई कमाल नहीं, अल्लाह ताला का करम है। एक ख्वाब था कि यार कुछ ऐसा हो सकता है कि अगर काश ऐसा हो जाए कि जब यहाँ पर इफ्तार का दस्तरखान सजा हो, जब यहाँ हम इफ्तार कर रहे हो तो पाकिस्तान साथ इफ्तार करे। ये मुझे याद है 2014-15 में ये बात कही गई थी कि कुछ ऐसा हो कि पाकिस्तान साथ इफ्तार करे। तो मुझे लगता है कि वो सिलसिला अल्लाह ताला ने करम किया। बहरहाल ये सफ़र जारी था 2013, 14, 15, 16 कि अचानक कुछ ऐसा हुआ, जिस तरह हम आपको दास्तानों में बता रहे होते हैं कि अचानक, और फिर अचानक के बाद मैं कहता हूँ कि एक नया मंजरनामा जन्म ले लेता है। शान रमज़ान की दास्तान में भी ऐसा ही हुआ। ये सब कुछ जारी था, बहुत अच्छे अंदाज से जारी था। अचानक मैं एक रोज़ सोकर उठा और ख़बर आई कि जुनैद जमशेद साहब इस दुनिया में नहीं है। तो कुछ यानी उस वक्त जैसे कहते हैं ना कि सब कुछ ही यानी कुछ समझ ही नहीं आया, मुख्तलिफ थॉट्स आने लगी। पहले तो जुनैद भाई के हवाले से ज़ाती ताल्लुक था, उस हवाले से बहुत सारी थॉट। जब उस थॉट से कुछ संभले, कुछ अरसा गुजर जाने के बाद, तो फिर जब शान रमज़ान, चूंकि रमज़ान भी करीब आ रहा था, तो फिर ये समझ नहीं आई कि अब इस सब को कैसे संभालना है। ये सब तो ऐसे चल रहा था साथ, यानी जुनैद भाई आप ये कर लें, मैं जरा ये रेस्ट कर लेता हूं, पार्टनर तू ये संभाल ले, मैं ये कर लेता हूं, ये सब तो ऐसे चल रहा था। ये अचानक अब ये कैसे होगा? ये तो बिल्कुल अकेला छोड़ के चले गए जुनैद भाई, ये अब कैसे होगा? तो एक बहुत ही कंफ्यूज्ड स्टेट में, बहुत ही सैड सॉरो स्टेट में और बहुत ही कंफ्यूज स्टेट में हमने 2017 के शान रमज़ान का आगाज किया कि नहीं मालूम था कि अभी इसकी समत क्या होगी। बस ये था कि चलो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये जुनैद जमशेद साहब के बाद पहला शान रमज़ान था जिसका मंजर अब अभी देखेंगे। इस नशरियात का आगाज करते हुए भी वो सब कुछ है, लेकिन वो अल्फाज नहीं है मेरे पास कि मैं ये कह सकूं कि मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा उस्ताद और मेरा सब कुछ, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं कह सकूं कि मैं जुनैद जमशेद साहब से गुजारिश करता हूं कि जरा आप आए सेट पर और सेट की रौनकें बढ़ाएं। समझ में आया कि जिंदगी किस हकीकत का नाम है। समझ में आया कि दास्तान सुनाने में और जब दास्तान आप पर बीतती है इसमें कितना फर्क होता है। समझ आया कि टाइम कैसे तब्दील हो जाता है। समझ आया कि अब तक मैं दास्तान में बताता था कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ, कि अचानक ये हुआ फिर नया मंजरनामा बदल गया। नहीं मालूम था, खुद एक दास्तान का हिस्सा बन जाऊंगा कि 2013 का भी आपको मंजर दिखाया कि जुनैद भाई को मैं बुला रहा हूँ और 2017 में सब कुछ तब्दील हो गया था। बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही अजीब व गरीब आलम में, यानी उस नशरियात में ही होता था कि नशरियात का आगाज हो रहा होता था और नशरियात के बीच में हम रो रहे होते थे, ब्रेक्स में रो रहे होते थे। एक बहुत ही इट वॉज वेरी टफ। किसी तरह करके वो नशरियात गुजरी, 2017 गुजरी। फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ संभलना शुरू हुए। अचानक फिर दास्तान में एक मोड़ आ गया, दुनिया भर में कोरोना आ गया, कोविड-19 नाम की वबा आ गई। और अभी आपको शायद ये सुन के शायद थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन आप थोड़ा सा याद करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। एक मंजरनामा ऐसा हो गया था कि जिसमें सवाल ये नहीं उठा कि नशरियात कैसे करनी है, सवाल उठा नशरियात करनी है या नहीं करनी। नशरियात कैसे हो सकती है जब एक एक आदमी 2-2 फीट दूर खड़ा होता है, लोग मर रहे हैं, रोजाना किसी की मरने की खबर आ रही है, अस्पताल भरे में, अब कैसे होगा। उससे नशरियात करीब आ रही थी और उस वक्त कंप्लीट लॉकडाउन था, सब अपने अंदर घरों में बैठे हुए थे। जूम मीटिंग्स, वो पहली मरतबा मैंने सुना जूम नाम की कोई शय भी होती है इस दुनिया में। जूम मीटिंग्स से सिलसिला शुरू हुआ, नशरियात ऐसे करेंगे, इस बैकग्राउंड के साथ करेंगे। जब इस सेट पर आए, ये सेट, मुझे ये जुमला कहना नहीं चाहिए लेकिन हम आपस में कह रहे थे इसलिए मैं जुमला दोहरा देता हूं कि जैसे कोई कब्रिस्तान हो, इस तरह का माहौल, हर आदमी एक पूरी किट पहने हुए, हर बंदा एक दूसरे से दूर है, डर है कि कोई
छींक रहा है तो उसको डर है कि मुझे तो कोरोना नहीं हो गया, वो फिर उसको, यानी ये हो रहा है कि पढ़ते हुए, क्या ये तो नहीं हुआ कि पढ़ते हुए उसका माइक मैंने पकड़ लिया तो उसके माइक से मेरे माइक पे, उसके हाथ से मेरे हाथ पे। इस आलम में हमने नशरियात शुरू की और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस नशरियात को आगे लेकर किस तरह जाना। यहाँ तक कि हमने एक हमारे भाई को हमने सिर्फ इसलिए रखा था कि वो जो सारे क्योंकि जो क्यू कार्ड्स मेरे हाथ में होते हैं ये 10 लोगों से होकर आते हैं। पहले क्यू कार्ड छपता है, फिर यहाँ पर आता है, फिर टीम के पास जाता है, फिर टीम प्रिंट आउट निकालती है, फिर वो उस पर लगाती है, खुद पर मैं, तो ये 10 हाथों से होकर आता है। और फिर क्यू कार्ड अभी मेरे हाथ में है, अब मैं थोड़ी देर बाद ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा। तो इस क्यू कार्ड पर जो है वो हर मेरे हाथ में आने से पहले जो है वो हर बंदे के हाथ में आने पे क्यू कार्ड पे अलग से स्प्रे होता था, सैनिटाइज होता था। इस माहौल में हमने कोविड-19 के बाद पहला शान रमजान किया था, कुछ इस आलम में। शान रमजान 2020 इस वक्त लिटरली पूरी दुनिया का निज़ाम रुका हुआ है। एक बहुत ही मुख्तलिफ माहौल में आज रमज़ान नशरियात का आगाज़ है। इस सेट को इस अंदाज से हमने कभी तसव्वुर नहीं किया था कि जहाँ आप लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद नहीं है। यहाँ तो मौजूद है, बहुत बड़ी तादाद मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसी खुशू व खुजू के साथ मौजूद है, लेकिन यहाँ मौजूद नहीं है। भरपूर एहतियात का हमने सेट पर भी बहुत ज़्यादा भरपूर एहतमाम किया हुआ है। कैमरे की इस तरफ का जो मंजर है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है जिस मंजर को हम देखने के आदी हैं। यहाँ पर बाकायदा किट्स में हमारे सारे साथी मौजूद हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल कैमरे के इस तरफ भी है और कैमरे के उस तरफ भी है। हमने अभी से सारी SOPs बना ली है कि किस तरीके से हर ब्रेक में मैंने वहाँ जाकर साबुन से हाथ धोने हैं, और नशरियात के दौरान मैंने अपने हाथों को सैनिटाइज करना है। हमें ज़ाहिर है सोशल डिस्टेंसिंग का भरपूर ख्याल रखना है। तो हमारे 2 नात खां इस तरफ और 2 नात खां हज़रात यहाँ तशरीफ फरमाओगे। ये शान रमजान का एक नया मोड़ था, ये शान रमजान का एक नया मंजर था। इस दौरान सेट पर ही कुछ ऐसी दास्तानों ने जन्म लिया तो कि हमने आपसे भी शेयर नहीं की, अभी भी नहीं कर रहे कि मजीद कोई खौफ ना फैल जाए, लेकिन सेट पर ही कि अरे ये हो गया, इसको वो हो गया, फलां ये हो गया। इसी के दौरान वो अचानक मुझे खबर मिली कि मेरी अपनी ममानी वो कोविड का शिकार हो गई हैं। फिर मुझे अचानक खबर मिली कि उनकी तबीयत नासाज है। फिर वो इसी नशरियात के दौरान उनका कोविड की वजह से, मतलब देखते ही देखते उनका इंतकाल हो गया। मुझे जान के मुझे ज़रा बाद में बताया घर वालों ने, ताकि वो मुझे कुछ घंटों बाद उसकी इस वाक़े की इत्तला मिली। यानी एक अजीब हैजान की सी कैफियत थी। ये रमज़ान भी गुजरा, कोविड-19 के बाद वाला रमज़ान गुजरा और शान रमज़ान का सफ़र यूं जारी रहा। बस चूंकि जिस तरह मैंने कहा एक एक सेगमेंट की और उसकी दास्तान बनाने जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। मैं बस आखिर में 2 सेगमेंट्स की और बात करता हूँ। ये जो हमारा गोशाए अतफाल है, जो बच्चों का सेगमेंट है, इसकी दास्तान भी बड़ी दिलचस्प है। हम पहले रोज़ा कुशाई करते थे बच्चों के साथ और गपशप लगाते थे। फिर ऐसे में मुझे एक मरतबा जो है वो ये तजवीज़ आई सामने, जे साहब की तरफ तजवीज़ आई थी डॉक्टर अहमद शाह साहब के हवाले से, जिसका मैं आपसे अगर ऑनेस्टली शेयर करूँ तो मैं इब्तिदान ज़रा मुखालिफ था इस तजवीज़ का कि ये कुछ मामला कुछ और ना हो जाए। समझ लीजिए एक टास्क हमने सेट किया कि भाई क्यों नहीं, अगर हम एक ऐसी एग्जाम्पल सेट कर पाएँ कि जिसमें लोगों को ये लगे कि एक अच्छे अंदाज में एक बच्चे की तरबियत हुई है, उसका तशख़्ख़ुस पहले कुछ और है और हम कुछ और तशख़्ख़ुस बना दें उसका, तो क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए हमें। तो अगेन मैंने डिसएग्री करते हुए मैंने कहा कि चलें मौज़ आप कह रहे हैं तो हम ट्राई कर लेते हैं। मुझे इतनी खुशी है इस बात की कि डॉक्टर अहमद शाह पीर, डॉक्टर साहब, इन सब का इमेज ही लोगों के जहनों में तब्दील हुआ और शान रमज़ान के बाद एक अलग अंदाज से ये सब पहचानने लगे। कुछ इस तरह के डॉक्टर अहमद शाह साहब हमने देखे जब नशरियात का आगाज़ हुआ, अगर दिखा सकें कुछ लम्हात के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाथ तो मिला लें। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। शान रमज़ान में आके कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। कितना अच्छा? बहुत। पूरा नाम क्या है आपका? डॉक्टर अहमद शाह। क्या बोला? आदिल, ये कह रहे हैं इनका पूरा नाम है डॉक्टर अहमद शाह। ये कोई इतनी सी एज में कोई डॉक्टर हो सकता है? ये अजीब सी बात नहीं है? डॉक्टर ये सारे बच्चे इतने छोटे छोटे थे। ये आदिल, वो अयान अब इतना बड़ा हो गया कि हमने कहा भाई अब तो उसको, अब तो ये इतना बड़ा हो गया है, वो डॉक्टर साहब। और अगर दिखा सकें कि फिर ये 1-2 सालों बाद जो है वो इस सेट पे उमर साहब आ गए थे अचानक, वो भी अगर दिखा सके मंजर, ये देखें जरा। ये कौन आ गया सर? ये कौन आ गया चलते हुए? ये कौन बच्चा है? ये कौन है? अस्सलाम वालेकुम। ओ भाई मेरी बात, ये
नस्लें परवान चढ़ रही हैं शान रमज़ान के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। एक और ये हुआ था कि हम अज़ान मगरिब के साथ ही नशरियात का इख्तिताम कर देते थे। वो कुछ एक सूरत हाल बनी जिसके बाद हमें ये था कि अज़ान मगरिब के बाद कुछ देर तक नशरियात को चलाना है और उसके बाद इस नशरियात का इख्तिताम करना है। तो मुझे याद है 15 शाबान की नशरियात, मुझे याद है कि मेरी टीम डॉक्टर साहब, मोहसिन साहब, ये सब मेरे घर पर आए हुए थे। 15 शाबान की नशरियात की हम तैयारियाँ कर रहे थे। तो हमने एक नया सेगमेंट सोचा, सबने बड़ी सोचो विचार के बाद, कि मुनाजात का कोई सेगमेंट करते हैं जिसमें अल्लाह से लौ लगाने की बात हो। बाकायदा दुआ तो ज़ाहिर उलमा किराम का मनसब है, वो तो वही कराएंगे। हम अपने तौर पर मुनाजात के कुछ अल्फाज, कुछ ऐसा सेगमेंट बनाए जिसमें हम मैं अल्फाज में कहूँ और हमारे जो दोस्त नात खां हज़रात हैं वो मुनाजात के कलाम पढ़ें। कुछ ऐसा अगेन हमने कहा ट्राई करके देखते हैं। वो सेगमेंट हमने किया 15 शाबान को। उस सेगमेंट का फीडबैक हमें बहुत अच्छा आया। 15 शाबान और रमज़ान में 15 दिन बाकी थे। मुझसे कहा गया कि जनाब हमें अगर इफ्तार के बाद कुछ करना हो तो क्या, तो मैंने सजेस्ट किया कि हम यही सेगमेंट दोबारा करें। तो इब्तिदान इसके बारे में कोई, यानी अभी सेगमेंट ऑनर नहीं हुआ था, ये कहा गया कि नहीं शायद पता नहीं सेगमेंट कोई देखेगा नहीं देखेगा। हमने अगेन कहा कि चलो ट्राई करके देख लेते हैं कि अज़ान मगरिब के बाद हम मुनाजात कर लिया करेंगे। चल गया, देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। मुझे इतनी खुशी है कि जब मुझे, यानी इस साल की अगर मैं बात करूं तो शायद किसी भी और सेगमेंट से ज़्यादा या बहुत सेगमेंट्स की तरह, खैर कसाइस का फीडबैक भी बहुत ज़्यादा आता है। ये कहना मेरे लिए मुश्किल है कि किस सेगमेंट का ज़्यादा फीडबैक आता है किसका कम, क्योंकि सबके ही बहुत आ रहे होते हैं। लेकिन इतने लोग इफ्तार के बाद, अजान के बाद इस दुआ से अपने दिन का या अपने रोज़े का इख्तिताम करते हैं। तो मुनाजात का सेगमेंट हमने इस तरह तजुर्बाती तौर पर शुरू किया था, जो कि आज भी इस अंदाज से जारी है। तू पकड़ ले उसको छुड़ा सकता नहीं कोई, उसे फिर कौन पकड़े जिसको मौला तू रिहा कर दे, उसे फिर कौन पकड़े। बारलाहा हर किस्म की मुश्किलात हल फरमा कि तू हल्लल मुश्किलात। सो 2013 की तिलावत से आगाज, 2023 का मुनाजात से इख्तिताम और इस दौरान के वाक़यात। ये थी दास्तान शान रमज़ान, शान रमज़ान के 11 साल। आप सबसे दस्तबस्ता गुजारिश, अगर आपको लगे कि हम सब ने, जिसका इस टीम का मैं सिर्फ एक नुमाइंदा हूँ जो कि कैमरे के सामने होता है, बाकी बहुत सारी टीम है, हर बंदे का किरदार बहुत अहम है। अगर आपको लगे कि हमने इसमें से कुछ भी पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया है तो प्लीज़ आज शब जब इफ्तार के लिए बैठें तो हम सबको अपनी दुआओं में प्लीज़ ज़रूर याद रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में प्लीज़ ज़रूर याद रखिएगा। सेहत के हवाले से और हर हवाले से प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में आप सब ज़रूर याद रखिएगा। सो शान रमज़ान का 2013 का आगाज़ होने वाला सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जारी है। अल्लाह ताला इस सफ़र को इसी जोश, जज्बे, एनर्जी और रूहानियत के साथ बरकरार रखे इंशाअल्लाह। मैं सारे पाकिस्तान से कहूंगा, शान रमज़ान लगाए रखिए। रमज़ान के महीने